آتے جو کربلا والے ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ یا ان 3 شعروں کے ساتھ کہ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مصرے سنیں امیر بھائی، کہ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ جذبات ابو ذر کی قسم، آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے، غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے۔ پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہیں وہ لوگ جو دشمن شبیر پا لعنت نہیں کرتے، جو دشمن شبیر پا لعنت نہیں کرتے۔ پھر میں گزارش کرتا ہوں سبھی حضرات سے کہ فرش اعضاء پر تشریف لائیں۔ آئیے جو دور دور بیٹھے ہیں ان سبھی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں تو بڑی نوازش ہوگی، اس لیے کہ خطیب ممبر پہ آنے والا ہے تاکہ آپ حضرات سے وہ مخاطب ہو سکیں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اور اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات اور باواز بلند صلوات پڑھ دیں تاکہ باہر والے اندر آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مسلسل ان مجلسوں سے محترم مولانا قبلہ یسم نقوی صاحب خطاب کرتے رہے، بہترین تقریروں سے آپ حضرات کے دلوں کو روشن و منور فرماتے رہے۔ یقیناً جو حق ہے وہ تو ادا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، سب کچھ کہہ لیا۔ عزادارو، بس ہم یہ نوکری کر رہے ہیں، خدا کرے مولا حسین ہماری اس نوکری کو قبول فرما لے۔ بڑی ہی معزز شخصیت جو 3 دنوں سے آپ سے مخاطب ہوتی رہی، جناب یسم نقوی صاحب قبلہ و کعبہ، یقیناً قابل تعریف ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی انہیں آپ سماعت فرمائیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں بصد احترام قبلہ و کعبہ مولانا یسم نقوی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات موصوف کا استقبال اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خاندان زہرا پر بلند آواز میں صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، موجد الاولین والآخرین، والحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم، مجالس کا یہ سلسلہ جو تیسری ربیع الاول کا شروع ہوا تھا، آج اس وقت اس مجلس کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ مسلسل اعلان ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر حسین کے شہدائی، حسینیت کا پرچم بلند کیے ہوئے، حسینیت دکھاتے ہوئے، حسینیت بتاتے ہوئے، حسینیت سمجھاتے ہوئے، حسینیت پہچنواتے ہوئے، ایک ایک قدم رکھ کر چلتے ہوئے یہ بتاتے جائیں گے اور احساس کراتے جائیں گے کہ راہ حسین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے ہر لمحہ، ہر قدم پہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ انسانیت کا سب سے بڑا زیور قربانی ہے۔ کیا بات ہے، انسانیت کے تحفظ کے لیے لمحہ لمحہ قربانی کی ضرورت ہے، اور حسین آج جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور جو بات میرے مشاہدے میں بھی ہے کہ دور دراز سے لوگ آئے، نہ صرف یہ کہ شیعہ حضرات بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی آئے، ہمارے ہندو بھائی بھی آئے۔ میں ایک سوال رکھوں، کیوں آئے؟ یہ ہمارے لیے تو نہیں آئے، کچھ نہ کچھ رشتہ حسین سے ہے۔ اگر کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہ ہوتا تو یہاں تک نہ آتے۔ یہ کیا رشتہ ہے؟ میں اسی رشتے کو ذرا سا دو مصروں کے ساتھ واضح کرتا ہوا اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے دو مصرے بڑے غور سے سننا۔ کون سا رشتہ ہے جو کھینچ کے لایا ہے؟ کیا وجہ؟ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ یہ مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو مسلمان ہے اسی کے ذہن میں حق کی بات ہو۔ مسلمان بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، حق کی پہچان کچھ اور ہے۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ اسی تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے جس سے کھچے ہوئے، بدھے ہوئے سب چلے آ رہے ہیں۔ حسین کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ اگر حسین کو پہچاننا ہے تو میں اپنی گفتگو بعد میں شروع کروں گا۔ میں یہاں کی بات کروں کہ مہاتما گاندھی نے بڑا عجیب جملہ کہا حسین کے لیے، اور پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ دنیا اسلام کو خاص طور سے یہ آئینہ دکھا رہے ہیں مہاتما گاندھی۔ عجیب جملہ کہ اگر حسین جیسے 72 مجھے مل جاتے، سنو جملہ مہاتما گاندھی، ہندوستان کے سرزمین پر یہ جملہ گونجا، اگر حسین جیسے 72 مجھے مل جاتے
تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان آزاد کر لیتا. کیا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ کیا سمجھا تھا؟ کون سی ایسی بات تھی؟ صرف 72. پورا ملک آزاد. 24 گھنٹے میں میں پورا ملک آزاد کر لیتا. اگر مجھے 72 مل جاتے تو یقیناً یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، حسین کے 72 ایک طرف ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین جیسے 72 مجھے مل جاتے. یہ 72 نکھر کے، سور کے، سج کے جیسے آئے، اور جس کی بھی نگاہ پڑی 1400 برس گزر گئے، آج تک ان 72 کی کوئی مثال پیدا نہیں ہو سکی. نہیں، ایسے نہیں، ذرا اور سمجھو. ان 72 کی رفتار کتنی ہے. آج تہذیب و تمدن کی تبدیلیوں نے اس منزل تک لوگوں کو پہنچایا کہ ذہن ترقی کے لفظ میں ایسا گم ہوا ہے کہ ترقی 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 ترقی، کتنا آگے بڑھیں گے، کتنا آگے بڑھیں گے. نہ جانے کتنے آگے بڑھ جانے کے بعد جب ٹھوکر لگتی ہے ترقیوں پہ، ترقیوں کی منزل طے کر لینے کے بعد، ایسا تو نہیں کہ پرسکون ہو گئے. کیا آج بے چینیاں نہیں ہیں؟ کیا آج خطرے نہیں ہیں؟ کیا آج خوف و ہراس نہیں ہے؟ کیا آج بھوک اور پیاس نہیں ہے؟ کیا آج غربت نہیں ہے؟ کیا ظلم نہیں ہے؟ بے ایمانی نہیں ہے؟ مکاری نہیں ہے؟ دھوکے بازی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. جب کوئی ان میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اپنا علاج تلاش کرتا ہے. مصیبتوں سے نکلے کیسے، پریشانیوں سے دور کیسے ہو، بلاؤں میں گرفتار نجات کہاں سے پائے. جب ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، کہیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی، کہیں کوئی مشکل کشا نظر نہیں آتا، کہیں کوئی مصیبتوں کا دور کرنے والا نظر نہیں آتا، تو ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ اب انسان مجبور ہوتا ہے کہ پلٹ کر اپنا ماضی دیکھے، پلٹ کر اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالے. جب سامنے کچھ نظر نہ آئے، تھوڑی دیر کی گفتگو ذرا اسے پوری طرح ذہن نشین رکھے تاکہ انجام تک، نتیجے تک بات پہنچے تو آپ محسوس ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنے دلوں میں کوئی بات بسا کے جائیں گے. جب ان مصیبتوں میں انسان گرفتار ہوتا ہے، کسی کا گھر لٹ جائے، کسی کا کاروبار برباد ہو جائے، کسی کی اولاد مر جائے، کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، جب کوئی قوم ظلم کی چکی میں پسنے لگے، جب دنیا میں مظالم بڑھنے لگتے ہیں اور علاج کہیں نہیں ملتا. توجہ چاہ رہا ہوں، اور ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ دنیا نے ترقی کے نام پر تباہی کے سامان تو مہیا کیے. یہ ایٹم بنانا کیا ہے؟ یہ سارے اسلحے جو بنائے جاتے ہیں کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ میں کسی ایک کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ تباہی کا سامان تو مہیا کر رہے ہیں، دنیا کے آباد کرنے کا سامان کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں. تو جب ایسے حالات میں، جب ہر طرف سے راہیں بند ہو جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اب سنیں. زندگی حادثہ بن بن کے گزر جائے گی، زندگی حادثہ بن بن کے گزر جائے گی. حال دکھ دے گا تو ماضی پہ نظر جائے گی. جب حال میں کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں، تو ماضی پہ نظر جائے گی. حال دکھ دے گا تو ماضی پہ نظر جائے گی. تم جو یہ مشورے ترک وفا دیتے ہو، ہمارے جیسے بن جاؤ، ہماری صف میں آ جاؤ، ترقی یافتہ دور ہے، آؤ ہمارے قدم سے قدم ملا کے چلو، ہمارے طرح سے چلو، اپنی روش چھوڑو، تو
याद रखना, मैं जुमलों को समेट के सिर्फ मुतवज्जे करना चाहता हूं। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो जहनों से बालातर हो। सामने की बातें हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे जिन्हें तारीखें पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इस दुनिया में कितनी तहजीबें पैदा हुई, मैं बहुत मुतवज्जे करो इस बात की तरफ, कितनी तहजीबें इस दुनिया में पैदा हुई। मोहनजोदड़ो की अलग तहजीब, हड़प्पा की अलग तहजीब, आज चले जाइए आगे बढ़िए, मिस्र की अपनी तहजीब, फिरौन की तहजीब, बाबुल की अपनी तहजीब, हर इलाके की तहजीब मिली। ये तहजीब क्या है? सैकड़ों साल बस्तियां बसी रही, सैकड़ों साल शहर आबाद रहे, उनकी तहजीब पैदा हुई और पैदा होके तारीख में नापैद हो गई। आज पूरी दुनिया में एक भी तहजीब बाकी नहीं है। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, जो तहजीबें थी सब दम तोड़ चुकी, हजारों साल बस्तियां बसी रही, मगर फिर भी तहजीब ऐसी न बन सकी जो आने वाले जमानों पे मोहित हो जाए, आने वाले जमानों को अपने कब्जे में रखे, इंसान को इधर उधर न जाने दे। हर तहजीब मिटती चली गई। हिंदी जबान में कौन से संस्कृत कहते हैं? संस्कृत जबान नहीं, संस्कृति। संस्कृति क्या है? हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा लोगों से मिलना, हमारा अपने मामला तय करना, ये तहजीब एक तमद्दुन है। लेकिन आज तक बस्तियां हजारों साल बसी रही, शहर आबाद रहे, मगर शहर भी मिट गए, तहजीबें भी मिट गई। पूरी तारीख कायनात में एक बस्ती, तवज्जो चाह रहा हूं, पूरे मजमे की तवज्जो, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, पूरी तारीख कायनात में एक बस्ती जो 2 मुहर्रम को बसी, क्या अर्ज कर रहा हूं, कहां है आप? 2 मुहर्रम को बसी, 10 मुहर्रम को उजड़ गई। सिर्फ 8 दिन ये बस्ती बसी, 1400 बरस गुजर गए। इस 8 दिन की बसी हुई बस्ती ने वो तहजीब दे दी। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जो कहा है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किया, हजारों साल की बसी हुई बस्तियां अपनी तहजीब के नुकूश छोड़ न सकी। बस्तियां मिटी, तहजीब चली गई, बस्तियां मिटी, तहजीब चली गई। सिर्फ 8 दिन की बसी हुई बस्ती ने ऐसी तहजीब पहुंचाई कि जब दुनिया थक हार करके अपनी गली में मायूस हो जाती है तो निगाह करबला की तरफ उठती है, और करबला जब तहजीब पेश करती है तो सर झुका के कहना पड़ता है कि अगर ऐसे 72 होते, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, ऐसे नहीं, बदल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस तहजीब का आईना दिखाऊं आपको, क्या तहजीब है? पूरी दुनिया के सामने चैलेंज कर रहा हूं इस तहजीब पर। न उंगली कोई उठा सका, न रहती दुनिया तक कभी कोई उंगली उठा पाएगा। 1400 बरस पहले तहजीब कायम हुई, दुनिया तरक्की की मंजिल पे गई, लेकिन करबला के 72 इतने तरक्की याफ्ता कि अभी तक उनकी गर्दे पा भी किसी को नहीं मिली है। दुनिया तलाश कर रही है, अभी हुर के नक्शे कदम है, हुर के कदमों तक रसाई नहीं हुई है, हुर के कदमों तक रसाई नहीं हुई है। आप सोचे ये कौन सी तहजीब है जिसका दर्श दिया गया? अब आप मुझे मुलाहजा फरमाए, एक इस्लाम वो जो मदीने से चला था, मक्का में उगा था, मदीना में फैला था, और फैलने के बाद दुनिया अरब की सरहदों से गुजरता हुआ पूरी दुनिया पर अपने नुकूश कायम करता चला, कायम करता चला, करता चला। मगर अंजाम क्या हुआ कि उस इस्लाम के आईने में जब दुनिया ने देखा तो देखने के बाद आज कहता चला गया, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम दे रही है, इस्लाम में जुल्म है,
اسلام میں قتل ہے، اسلام میں جنگیں ہیں، اسلام میں فساد ہے، اسلام میں حملے ہیں۔ شاید اسی دن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی۔ جب اس اسلام پر انگلیاں اٹھنے لگے، رسول بتا کے گیا کہ میرا اسلام میرے بعد حسین کے پاس دیکھنا، دنیا کے بکھرے ہوئے مسلمانوں میں نہ تلاش کرنا۔ اور یہاں بس ایک بات کہتا چلوں، ہر مذہب میں اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے، تو بروں کی برائی سے مذہب پہ اثر نہیں آئے گا۔ میں کیا عرض کر گیا ظالم محترم، کہا ہے بروں کی برائی سے جو مذہب چوری کی اجازت نہیں دیتا، اگر اس مذہب کا ماننے والا چور ہو تو اس چور کی وجہ سے مذہب بدنام نہیں ہوگا۔ مذہب کے اپنے قوانین، وہ باغی ہو سکتا ہے مذہب کا، مذہب پہ انگلی نہیں اٹھے گی۔ تو اگر کلمہ پڑھنے والے چند افراد دہشت گرد ہو جائے تو وہ دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گردی نہیں دے رہا۔ پہچانے آپ اس کو؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام نے 2 اسلحے دیے، اور سن لو، جو موجود رپورٹر اگر موجود تو لکھے میرے ایک جملے کو، اور پوری دنیا کے سامنے تاریخ کا آئینہ دکھا کے چیلنج کر رہا ہوں۔ اسلام نے 2 اسلحے دیے، ایک اسلحہ دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے، ایک اسلحہ حملہ کرنے کے لیے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ 2 اسلحے موجود ہو، اگر ہے بھی تو دم توڑتے ہوئے اسلحے، اگر ہے بھی تو اتنے کارگر اسلحے نہیں ہیں۔ بڑی سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان سے میری باتیں سننا تاکہ نتیجے تک بات پہنچ جائے۔ 2 اسلحے، ایک دفاع کرنے کے لیے، ایک حملہ کرنے کے لیے، اور دونوں کی حد بندی کر دی گئی کہ جو اسلحہ دفاع کے لیے ہے اس سے کبھی حملہ نہ کرنا۔ اگر دفاع کے اسلحے کو حملے میں استعمال کیا تو تم مجرم، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دفاع کا اسلحہ حملے میں استعمال کرو، کبھی نہیں۔ اب یہ 2 اسلحے ہیں کیا؟ ایک اسلحے کا نام ہے ہتھیار، اور ایک اسلحے کا نام ہے کردار۔ ایک اسلحہ ہتھیار، دوسرا اسلحہ کردار۔ دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے ہتھیار دیا، کیا عرض کر رہا ہوں، ڈیفنس کرنے کے لیے تلوار دی، حملہ کرنے کے لیے کردار دیا۔ کردار سے حملہ کرنا، تلوار سے نہیں۔ اب مشہور واقعہ اگر سمجھ میں آئے تو سمجھو، رسول چل رہا، بڑھیا کوڑا ڈال رہی، چلتا گیا کوڑا پڑتا گیا، چلتا گیا کوڑا پڑتا گیا، پڑتا گیا پڑتا گیا، چلتا گیا، جس دن نہیں پڑا اب تک دشمن کا حملہ تھا۔ توجہ ہے، یہ کوڑا ڈالا جا رہا ہے، حملہ ہے۔ رد عمل میں رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ جس دن کوڑا نہیں پڑا، پوچھا کیا ہوا، کیوں کوڑا نہیں پڑا؟ کہ کوڑا ڈالنے والی عورت بیمار ہے، بیمار۔ اب باری آئی حملے کی، توجہ چاہ رہا ہوں، اب باری آئی حملے کی۔ اب یہاں دفاع کا اسلحہ استعمال نہیں ہوگا، یا حملے کا اسلحہ استعمال ہوگا۔ آئے رسول محمد، اب آئے ہو۔ جب میں بستر پہ آ گئی، جب میں کمزور ہو گئی، اب آئے۔ فرمایا تو کیا سمجھی، تو نے کیا سوچا میں کس لیے بدلہ لینے آیا؟ کہا پھر، کہا سنا تو بیمار ہے، تیری مزاج پرسی کو آیا۔ یہ حملہ ہے، یہ حملہ ہے، کردار کا حملہ۔ کہا محمد یہ تمہارا دین، کہا یہ میرا دین۔ کہا محمد کلمہ پڑھواؤ، کیا عرض کروں؟ کہا کلمہ پڑھواؤ۔ کردار نے حملہ کر کے
अपना बनाया, कलमा पढ़ाया। अब तारीख में ढूंढो कोई मिला मोहम्मद के किरदार पे अमल करने वाला? नहीं। आगे बढ़ो, मैदान जंग है, अली के हाथ में तलवार है। देखो, जहन में रहे, इस्लाम में दो असलहे हैं, दिफा का असलहा और हमले का असलहा और। बात समझ में ना? दिफा काहे से होगा? क्योंकि दिफा इसलिए हथियार से कि आने वाला हमलावर हथियार लेके आया है, तो हथियार के सामने हथियार, यानी कहने का मतलब यह है कमजोर बन के न रहना, सर उठा के रहना। अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के सिवा किसी और के मोहताज न बनना। अली की तलवार सामने, दुश्मन, जंग हो रही है, दुश्मन की तलवार टूट गई। तवज्जो चाह रहा हूं, दुश्मन की तलवार टूट गई। अब डर गया, घबराया कि अब तो अली मार देंगे, मगर जब तलवार टूटी, अली ने तलवार म्यान में डाल दी। अली ने तलवार म्यान में डाल दी। जब देखा कि अली ने तलवार म्यान में डाल ली है, अब मुतमईन हुआ, अली मारेंगे नहीं। जरा सा सांसें आना जाना शुरू हुई। आगे बढ़ा, क्या कहता है? या अली, मैंने सुना है कि आपसे कोई भी सवाल किया जाए आप रद्द नहीं करते, जो मांगा जाए आप देते हैं। फरमाया, हाँ, तेरा कोई सवाल है? कुछ चाहिए? कहा, या अली सवाल है। कहा, क्या? कहा, तलवार दे दो। तवज्जो चाह रहा हूं, वाकया सुना नतीजा देने जा रहा हूं अजीजों। कहा, तलवार दे दीजिए। एक लम्हा भी सोचे बगैर तलवार निकाल के हवाले कर दी। पहचानो किरदार क्या है। तलवार निकाल के हवाले कर दी, ली तलवार। जब तलवार अपने हाथ में आई, अब इतराया, अब इतराया, मुस्कुराया, जरा अपने पे अकड़ा, अली की तरफ देख के अजब जुमला कहता है, या अली, कितने ही बहादुर हो मगर दस्तूरे जंग नहीं जानते, उसूले जंग नहीं जानते। क्या? क्यों? भला क्या ऐसा जो मैं नहीं जानता? क्या? या अली, ये कहां का दस्तूर कि मैदान जंग में अपना असलहा दुश्मन के हवाले कर दिया जाए? किरदार का हमला होगा, तलवार का हमला नहीं होगा। क्या कहता है? कहां का दस्तूर कि मैदान जंग में अपना असलहा दुश्मन के हवाले कर दिया जाए? मौला मुस्कुराए, मैंने किसी दुश्मन को असलहा कब दिया है? क्या अर्ज कर रहा है मोहतरम? क्या सुन रहे हैं आप? जरा गौर करें, मेरा मौला क्या कह रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने किसी दुश्मन को नहीं दिया। क्या या अली, क्या मैं दुश्मन नहीं? फरमाया, जब तक तू तलवार चला रहा था तब तक दुश्मन था। जब तूने सवाल कर लिया, मांग लिया, अब साइल हो गया, फकीर हो गया, अब साइल हो गया, फकीर हो गया। साइल साइल होता है। सुनो, अली का जुमला सुन लिया ना? अब जरा सोचो, हुसैन के दरवाजे पर जब भी कोई मांगने आता है, मैं किसी मजलिस में अर्ज कर चुका हूं, क्या इस बारगाह में लोग नहीं आते? न जाने कौन कौन आता है। कभी हुसैन ने यह पूछा, आने वाले, बता तेरा मजहब क्या है, बता तेरा अकीदा क्या है, बता मुझे दोस्त रखता है दुश्मन रखता है? नहीं, मांगा तो साइल बन गया ना। का जब तूने सवाल कर लिया तो साइल हो गए। साइल साइल होता है, दुश्मन नहीं हुआ करता। पर ये सुनना था कि मर्द वाली का चेहरा देखा, तलवार रखी, रकाब से लिपट के कहता है, अब से पहले कोई आपसे बड़ा दुश्मन नहीं था, अब से बढ़ के कोई आप जैसा महबूब नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब समझे?
किरदार हमला करने के लिए, तलवार डिफेंस के लिए, तलवार दिफा के लिए। अब इस्लाम ने तो इजाजत दी नहीं कि तलवार हमले में इस्तेमाल की जाए। अब अगर कोई कलमा पढ़ के तलवार उठा के हमला करे तो देखो ये मेयार दिया इस्लाम ने। क्यों मेयार दिया? कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से किसी को मुसलमान न मान लेना, मुसलमान न मान लेना। क्यों? कुरान मजीद ने बार बार इसकी तरफ इशारा किया है और मुतवज्जे करता हुआ आवाज दो कि सूरह मुनाफिकून आवाज दे रहा है, हर कलमा गो मुसलमान नहीं है, हर कलमा गो को मुसलमान न समझ लेना। क्यों? अगर मुसलमान को, अगर इस्लाम को मिटाना है तो मुसलमान बन के तस्वीर खराब की जा सकती है। लिहाजा जब इस्लाम के हुक्म के बरखिलाफ दिफा का अस्लहा हमले में इस्तेमाल हो तो समझ लेना ये दुश्मन इस्लाम है, मुसलमान नहीं है। तो जुमला कहता चलो, जो कलमा पढ़ के अल्लाह का नहीं हुआ वो किसी इंसान का क्या हो सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किरदार हमला करने के लिए, किरदार का हमला। और 1400 बरस पहले जो किरदार पेश हुआ था ये वही करबला का हमला है कि जिगर कटते जाते हैं लोग, हुसैन को अपना कहते चले जाते हैं, अपनाते चले जाते हैं। यहां मजहब नहीं देखा जाता, यहां कोई सरहद नहीं है। वजह क्या? वजह बस ये कि हुसैन इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। हुसैन वो जिसने इंसानियत को बचाया और न सिर्फ बचाया बल्कि दुनिया में इंसानियत और हैवानियत, इंसानियत और दरिंदगी, इंसानियत और शीतरत का मेयार कायम कर दिया। इस मेयार को समझना है तो आप समझा दो। आपने एक रुबाई बहुत सुनी और यहां मजलिसों में भी ये रुबाई पढ़ी जाती रही। एक मिसरे के जरिए एक नई फिक्र आपके हवाले कर रहा हूं। ख्वाजा मेरी की रुबाई मशहूर है ना, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, दीनस्त मोहम्मद दी पनाहस्त मोहम्मद, क्या ये गलत है? दीनस्त अली दी पनाहस्त अली, क्या ये गलत है? दीनस्त हसन दी पनाहस्त हसन, क्या ये गलत है? नहीं। मोहम्मद दीन भी है, दीन की पनाह भी है। अली दीन भी है, दीन की पनाह भी है। हसन दीन भी है, दीन की पनाह भी है। लेकिन ना मोहम्मद पे मिसरा कहा गया, ना अली पे मिसरा कहा गया, ना हसन पे मिसरा कहा गया। वजह क्या है? वजह क्या है? पहचानो क्या वजह। जबकि जैसे हुसैन दीन भी, दीन की पनाह भी, ऐसे ही मोहम्मद भी दीन है और दीन की पनाह। ऐसे अली दीन है, दीन की पनाह, हसन दीन है, दीन की पनाह। लेकिन किसी के लिए नहीं कहा गया सिवाय हुसैन के। वजह क्या है? वजह यह है मोहम्मद दीन, ऐलान कर दो, ठीक है दीन है, इसमें इनकार नहीं, और जो इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं। लेकिन कहा क्यों नहीं गया? ये कलमा, ये मिसरा सिर्फ अपनों तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में गूंजेगा। तो जब दुनिया में गूंजेगा, हर दुनिया वाला सोचेगा मोहम्मद दीन, तो बस में मोहम्मद में बैठने वाले दीनदार कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ख्वाजा अजमेरी नहीं चाहते थे कि बस में मोहम्मद में बैठने वाले मुनाफिक को दीनदार कह दे। क्या सुन रहे? तवज्जो करे आप। बस में मोहम्मद मुनाफिकों से खाली रही, बस में अली क्या खाली रही मुनाफिकों से? ये इब्ने मुलजिम था कौन? ये जियाद था कौन? यह शख्स कौन था
یہ سارے تاریخ میں جو نام پائے جاتے ہیں یہ تھے بزم علی والے نا. جنگ صفین میں علی کو جنگ روکنے کے لیے مجبور کرنے والے تھے کون؟ توجہ ہے، تاریخ میں نگاہ ہے نا. یہ تھے کون؟ علی والے ہی تو تھے، علی ہی کے گرد رہنے والے تو تھے. اگر کہہ دیتے دینست علی تو بزم علی کے سب دیندار مانے جاتے. حسن مسلح کھینچنے والے بھی ہیں، مال لوٹنے والے بھی ہیں، معاویہ کے ہاتھ بکنے والے بھی ہیں، سب ہیں. اگر کہتے دینست حسن تو بزم کے سب دیندار کہلاتے. نگاہ اجمیری تلاش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا موقع آئے جہاں ایک خالص بزم مل جائے. دور دور تک کسی منافق کا شائبہ نہ ہو. اب جب نظر کربلا پہ گئی تو کیا دیکھا؟ بزم حسین میں کوئی منافق نہیں، لشکر یزید میں کوئی مومن نہیں. اب اعلان کیا دینست حسین. مطلب کیا ہوا؟ حسین دین، حسین کے طرف 72 یہ دیندار، 72 دیندار. اب میری بات اپنی منزل پہ پہنچی ہے کہ 72 دیندار ہے. اے دنیا والو، اگر دین لینا ہے تو ان 72 کے پاس جانا، نہ مدینے والوں کے پاس جانا، نہ شام والوں کے پاس جانا، کربلا آنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد محمد. عزیزو، میں نے بہت کچھ سوچا تھا، لیکن خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے کہ شاید میں اپنی خوش فہمی میں تھا. اس لیے کہ کیا چاہتے ہو، آؤں اسی لیول پہ، کروں ایسی بات یہاں سے لے کے آخر تک آواز گونجے گی. لیکن سنو، اس آخری مجلس میں بیٹھے ہو، ایام عزا آخری منزلوں میں ہے. چاہتا یہ ہوں کہ سال بھر کے لیے میسج لے کر کے جاؤ. اٹھو تو یہ سوچو کہ فرش عزا پہ صرف جنت کی ضمانت ہی نہیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ملا ہے. معرفت کے دروازے کھلے. میں سطحی منزل پہ آ کے گفتگو نہیں کیا کرتا. اپنے معیار سماعت کو ذرا بلند کرو. کب تک اسی عالم میں رہو گے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کب تک اسی عالم میں رہو گے؟ علی کی فضیلت کیا سمجھتے ہو؟ سن پاؤ گے علی کی فضیلت؟ سلمان گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ جائے کہ مولا پاس، ورنہ وہ کہہ دوں گا. تم کیا برداشت کر سکتے ہو؟ ہم کیا برداشت کر سکتے؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اگر فضائل علی کی بات آ جائے، فضائل حسن و حسین کی بات آ جائے، فضائل سیدہ کی بات آ جائے تو کسی کے تحمل کی بات نہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا. فرشتے تو برداشت نہیں کر پاتے. تم کیا برداشت کر پاؤ گے؟ ہم کیا برداشت کر پائیں گے؟ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اپنے عرفان کو بڑھاؤ، معرفت کو بڑھاؤ، معرفت کو بڑھاؤ. کیوں؟ ایک ذمہ داری ہے تمہارے کاندھوں پر. کیا ذمہ داری؟ یہاں آئے ہو نا، کیا نام ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر کسی نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، یہ نہیں کہے گا کہ گجرات کے فلاں علاقے کے، یہ احمد آباد سے آئے، یہ بھاؤ نگر سے آئے، یہ راجولہ سے آئے، یہ مہوا سے. یہ نہیں کہے گا کوئی بھی. کیا کہے گا؟ یہ حسین والے. یہ حسین والے ہیں.
पहचाने गए ना नाम हुसैन से, तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी। अगर कोई हुसैन वाले को देखेगा तो वहीं से सोचना शुरू करेगा, जब हुसैन वाला ऐसा है तो हुसैन कैसा होगा। यह है जिम्मेदारी। लिहाजा इरफान की मंजिलों पे आगे बढ़ो, ताकि कदम उठे तो जमीन का जर्रा जर्रा आवाज दे, हुसैन वाला जा रहा है, हुसैन वाला जा रहा है। और कहो तो उसी सतही मंजिल पे आके गुफ्तगू करो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ 12 मिनट मेरे हाथ में है, इसके बाद मसाइब पढ़ना है। अपने वक्त में मजलिस खत्म कर दी। इन्हीं 12 मिनट में, ये भी नहीं मैं अपनी सतह से नीचे आने का आदी नहीं हूं, मगर एक बात हवाले करना चाहता हूं और वो सुनते जाओ। कुरान मजीद ने हमें एक निशान दिया, एक बात समझाई, कुछ बताया है। दुआओं की बातें होती चली हैं मुसलसल मजलिसों में, आप दुआ पे गुफ्तगू सुनते चले। हर जाकिर की जबान से कुछ ना कुछ दुआ पे बातें होती रही है। अंबिया की दुआओं का भी तस्करा हुआ और तमाम अंबिया के सरदार की दुआ का भी तस्करा हुआ, मगर कुरान मजीद ने भी अंबिया के सरदार की दुआ को बड़े शान से नकल किया है। जैसी दुआ सब अंबिया की, वैसी दुआएं मोहम्मद नहीं। सरदार और होता है, लश्कर और होता है। जब पसीना है लश्कर पसीना नहीं। आदम मोहम्मद के एक कतरे पसीने का नाम, नूह मोहम्मद के एक कतरा पसीने का नाम, इब्राहिम मोहम्मद के एक कतरा पसीने का नाम। ये पसीने हैं जो दुआ करते, जो मुजस्सम वो दुआ करता नहीं। अल्लाह कहता हबीब ऐसे कह दे, अल्लाह कह रहा हबीब मांग, ऐसे मांग, लफ्ज़ें भी अपनी नहीं, अल्लाह दे रहा है। क्या मूसा ने दुआ की थी ना, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और उसके बाद वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारूना अखी। दुआए मूसा, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी ज़बान की गिरहों को खोल दे और लोग मेरी बातों को समझे, मेरे लिए मेरे अहल से। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, बना दे वज़ीर मेरे अहल से, मेरे घर से, मेरे खानदान से। किसको? हारून अखी, मेरे भाई अखी, मेरे भाई वो हारून को मेरा वज़ीर। मूसा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने हारून को वज़ीर बनाया। तो मूसा वो जो मांग के ले, तवज्जो चाहे, मूसा वो जो मांग के ले, मोहम्मद वो जिससे अल्लाह कहे हबीब मांग, ऐसे मांग। कैसे? कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन वअखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, सिदाकत से मुझे दाखिल कर, सिदाकत से मुझे निकाल, वजअलनी और बना दे मेरे लिए, मिन लदुनका अपने पास से। अल्लाह कह रहा है हबीब ये दुआ मांगो कि अपने पास से मेरे लिए बना दे। क्या? सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मददगार। हमारे लिए, मेरे लिए अपने पास से ताकतवर नासिर दे दे, मददगार दे दे। जुमला सुन चुके, अब जरा सोचो। जनाबे फातिमा बिनते असद खाने काबा तक जो आई, क्यों? क्या विलादत की गिरानी लाई थी? क्या तकलीफों से आई थी? नहीं। कुछ मांगने आई थी? नहीं, कुछ मांगने भी नहीं आई थी। किस लिए आई थी? अगर मांगना होता तो काबे के दरवाजे पे खड़ी हो जाती। मांगने का दस्तूर दरवाजे पे है, कोई पुष्ट पे नहीं मांगता। गए हो, हज कर चुके हो, देखा निशान कहां है? दरवाजा उधर, निशान पीछे, जहां बीबी खड़ी होके कह रही है। इसका मतलब ये कि सब मांगने आते हैं। अली की मां
मांगने नहीं आई है, मांगने नहीं आई है। खड़ी हो गई, परवरदिगार मेरी मुश्किल आसान कर दे। आसान क्या हुई? दीवार में शगाफ पड़ा, दर बना, बीबी अंदर गई, अली पैदा हुए, लेके बाहर आई। दुआ क्या है? अपने पास से मददगार दे दे। शर्त है दुआ में। हाँ, मूसा ने मांगा अपने घर से दे, मेरे अहल से बना, मेरे अहल से बना, मेरे भाई को बना। रसूल की दुआ क्या? अबू तालिब के घर वाला नहीं चाहिए, तेरे घर का, तेरे पास से चाहिए। अब समझे बीबी को क्यों बुलाया गया? मोहम्मद को नासिर देना था। शर्त थी कि किसी के घर वाला नहीं चाहिए, खानदान वाला नहीं चाहिए, अल्लाह के घर का चाहिए। अब एक जुमला हवाले करता हूं। अल्लाह कहता रोजी मैं दे रहा हूं, कह दो नहीं लूंगा, कह दो नहीं लूंगा। अल्लाह कहता हिदायत मैं दे रहा हूं, कह दो नहीं लूंगा। तो कुफ्र है कि नहीं है? है कि नहीं है? जो अल्लाह दे उसे लेना ईमान, इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह ने अपने घर से मददगार दिया, अपने घर से नासिर दिया। अब पढ़ो इया का नाम दो भैया का नस्तईन। हम तेरी मदद चाहते हैं। तो क्या चाहते हो? अल्लाह आके मदद करेगा। अरे अपने घर से दे तो दिया मददगार। अब अगर कहते हो या अली ना कहो, ये है क्या? अल्लाह तेरा, तुम इनकार कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की अता अगर हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो तो हमें नहीं चाहिए। तो अल्लाह भी कहता है जब मेरी अता करदा तुम्हें नहीं चाहिए तो करते रहो दुआ, हम तुम्हें देंगे भी नहीं। अब यहां से मोहम्मद ने लिया कैसे था? बस आखिरी मंजिल में गुफ्तगू है, यहीं से रब्ते मसाइब लूंगा। लिया कैसे था? फातिमा ने दिया, मोहम्मद ने लिया। कैसे लिया? दोनों हाथों से लिया। ले लिया ना। अब लेने के बाद जब तक खुद अली रसूल के पास, और रसूल जा रहा है, मगर उम्मत को जरूरत है, कयामत तक के लिए जरूरत है। नासिर चाहिए, मददगार चाहिए, ऐसा हो उसकी जरूरत है। लिहाजा जब जरूरत पड़ेगी इस मददगार को रहना है। तो मोहम्मद ने काबे से लिया था, दोनों हाथों से लिया था। अब जा रहे हैं तो दे के जाना है, हवाले करके जाना है। तो जैसे अमानतदारी के तकाजे पर दोनों हाथों से लिया था, गदीर के मैदान में दोनों हाथों से दे दिया। अल्लाह ने अली को भेजा अपने घर में पैदा करके। ये न समझना कि अबू तालिब का बेटा है, मेरी तरफ से ये नासिर है, मददगार है। और नसीरा का लफ्ज है, नासिर का लफ्ज नहीं। उलमाए किराम की मौजूदगी में जरा से इसकी वजाहत करना चाहता हूं, बस इसी में मस्जिद में बात तमाम हो जाएगी। कहते हैं ना जिंदगी में मांगते अब क्यों आली कह रहे हो, अब क्यों आली कह रहे हो? मैं सतही बातों पर नहीं आ रहा हूं, कुरान ही से बात करके आवाज दे रहा हूं। एक लफ्ज है आलिम, एक लफ्ज है अलीम, एक लफ्ज है शाहिद, एक लफ्ज है शहीद। आलिम और अलीम समझाओ तो शायद न समझ में आए, शाहिद और शहीद समझाओ तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लफ्ज ज्यादा मानूस है लोग इससे। शाहिद कौन? जो गवाही दे, एक मामले में गवाही दे दी, शाहिद गवाह है। ये शर्त नहीं कि बराबर गवाही देगा, रोज गवाही दे, एक बार गवाही दे दी, शाहिद कहलाया। आज शाहिद है, कल मुकर भी सकता है। तो जब मुकर जाएगा तो ये कहा जाएगा तब शाहिद था, अब नहीं है। कलमा क्या है? शहादत ना। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये शहादत ही तो दे रहे हो।
اب ذرا سوچئے شاہد کیا جو کبھی کبھی دے گواہی اسے کہتے شاہد، اور شہید جب اسی گواہی پہ دنیا سے رخصت ہو جائے. میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں ورنہ دنیا سے رخصت ہونے کی شرط نہیں ہے. اگر وہ شرائط پورے ہو جائے تو اسی حیات میں شہید ہے. کیسے؟ جب دنیا سے رخصت ہوا کس عالم میں؟ اسی گواہی پر دنیا سے رخصت ہو گیا. تب ہر لمحہ روز محشر تک ایک بھی لمحہ اس کی شہادت سے خالی نہیں رہے گا. یہ ہے شہید جو ہر لمحہ گواہی دیتا رہے، خود چلا جائے گواہی شمار ہوتی رہے. وہ ہے شہید. جو کبھی کبھی گواہی دے وہ ہے شاہد. ایسے ہی جو کبھی کبھی مدد کرے وہ ہے ناصر. موجود ہو تو مدد کرے، نہ رہے تو نہ کرے، وہ ہے ناصر. جو ہر وقت مدد کرے جس کی گواہی، جس کی مدد کبھی ہو کبھی نہیں، ہے تو کر رہا ہے، نہیں ہے تو نہیں کر رہا ہے. یہاں ہے تو کر رہا ہے، کہیں دور ہے ہمیں یہاں ضرورت، تو جب یہاں ہے ہی نہیں تو کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے ناصر. لیکن وہ کہ جو مدینہ میں ہو، خیبر میں پکارا جائے، مدد وہاں جا کے کرے، وہ ناصر نہیں ہے، نصیر ہے. جس لمحے میں جہاں پکارا جائے وہاں مدد کرے، وہ نصیر. کوئی لمحہ پکارنے پر ایسا نہ ہو کہ وہ مدد نہ کرے تو نصیر کہلائے گا، ورنہ نصیر نہیں ہے. اب دوسری آیت جہاں ایک بات اور بتائی گئی سورہ حدید کی پوری آیت یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. یہ آیت ہے سورہ حدید کی جہاں اللہ آواز دے رہا ہے ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، میزان نازل کی تاکہ عدل قائم رہے، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا. یہ لوہا کسی سے ہضم نہیں ہو سکا تو کوئی بیلچا کہتا ہے، کوئی کلہاڑی کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ باس شدید، جس میں سخت لڑائی ہے. تو بیلچا زمین کھودنے کے لیے ہوتا، لڑنے کے لیے نہیں ہوتا. لڑائی تلوار سے ہوگی. وہ منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدہ، یعنی جب یہ تلوار چلے گی تو لوگوں کے فائدے کے لیے چلے گی، برباد کرنے کے لیے نہیں چلے گی. کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اس کا مددگار ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کے تمام رسولوں کا مددگار. بالغیب، کیسے؟ ظاہر ہوئے بغیر، پردے میں رہ کے آدم کا مددگار، پردے میں رہ کے نوح کا مددگار، پردے میں رہ کے ابراہیم کا مددگار، پردے میں رہ کے موسیٰ کا مددگار. یہ قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث نہیں ہے. بالغیب، غیب کے پردے میں رہ کر سارے رسولوں کا مددگار. یہ جاننا تھا، یہ بتانا تھا. تو جس کے ہاتھ میں تلوار آئی وہ ہے جو غیب کے پردے میں رہ کر آدم کا مددگار، نوح کا مددگار، سارے رسولوں کا مددگار. تو مجھے جتنا بتا دو جو دنیا میں آنے سے پہلے سب کی مدد کر رہا ہو، کیا جانے کے بعد کیا مدد نہیں کرے گا؟ ہم یوں ہی نہیں پکارتے. قرآن نے یہی کہا ہے کہ پکارو تو اس کو جسے اللہ نے مددگار بنایا.
बस अजीज, पढ़ चुका हूँ मजलिस, क्योंकि वक्त के अंदर मुझे मजलिस खत्म करनी है और अभी आप मातम करेंगे। जो कुछ मुझे बयान करना था, जो आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचाया। साथ में ये बात कि इस यकीन के साथ कि अली मददगार थे, मददगार हैं और मददगार हर लम्हा रहेंगे। यकीन के साथ पुकारो। और इसमें कि अगर कोई फतवा देता है तो उस फतवे पर हमें सोचना भी नहीं। क्यों? वो फतवा देकर कुरान से लड़ाई कर रहा है, हमसे नहीं। चाहे लड़े अल्लाह से, वो जाने, अल्लाह जाने, हमें क्या बीच में करना है। हमारे पास भी फुर्सत ही नहीं, और चाहने वाले कभी फुर्सत में रहते ही नहीं। या खुशी में झूमते हैं या गम में तड़पते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। इनकी मोहब्बत में डूब के झूमते रहते हैं, और जब झूमते हैं तो किसी तकलीफ का एहसास नहीं होता। सबूत दहकते हुए अंगारे, हम नहीं चल रहे, मोहब्बत चला रही। ये कमा और संचीर के मातम, सीना जनी, हम नहीं कर रहे, मोहब्बत करा रहे। ये मोहब्बत के सबब हाथ उठ रहे। ये बेदारियां, घर बार छोड़कर इतनी दूर आना और आके वापस जाना, ऐसे आलम में खाक पे सो जाना। इतने दिन सोए ना बहुत सारे लोग, मैंने देखा इसी खाक पे चटाई बिछा बिछा कर, चादरें बिछा बिछा कर इसी रेत पे सोए। ऐसे तो ये भी करबला है ना। हुसैन का रोजा, अब्बास का रोजा, और क्या चाहिए। मैं एक जुमला कहूं, अगर पूरी तरह से मुतवज्जे रहो। मैंने पिछली मजलिस में बात अर्ज की थी, आना कमाल नहीं है, अपने आने को कबूल करवाना कमाल है। मैंने कहा था अजीजों, रोने के लिए बस इतना ही काफी था। जब रेत पे सोते इतना ही सोच लेते कि कैंटीन है, कूपन मिला, हम खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। और जब सोए, हमारी माँ बहन, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो जरा देर के लिए सोचे। छोटे छोटे बच्चे, माए सोई तो सीधे से बच्चों को निपटा के सोई। अब जरा सोचो उस रबाब को, करबला के बाद रबाब क्या सोती है। क्यों? इसलिए कि तारीख में जब बात मिली कि जब जनाब रबाब दुनिया से रुखसत हो गई, उस वक्त जब मामला गुस्ल कफन का आया तो देखा गया कि आंचल में कोई चीज बंधी हुई है। कोई चीज आंचल में बंधी हुई है। जब खोला गया तो क्या मिला? असगर के जले हुए झूले की चंद लकड़ियां थी। क्या उस रबाब के बारे में सोच, जिस रबाब के साथ अजब कैफियत। मेरी मां बहने सुने मेरा जुमला, अगर किसी मां का छोटा सा बच्चा थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाता है, जब पलट करके बच्चा आता है तो मां क्या करती है? सबसे पहले अपने सीने से लगा के दूध पिलाती है। मेरा बच्चा इतनी देर के बाद आया, भूखा होगा। अगर कोई बच्चा भूखा प्यासा है, हाजरा कितना दौड़ी, चंद घंटों की प्यास ने इतना बेचैन किया। हर हाजी को अल्लाह दौड़ा रहा है। देखो, एक मां की तरफ का एहसास करो कि जब उसका बच्चा प्यासा होता है तो मां पे क्या गुजर जाती है।
अब जरा सोचिए कि अली असगर की प्यास क्या थी। जब जनाब सकीना ने जिंदान में सैयद सज्जाद से पूछा था कि भैया प्यास की कितनी किस्में, और सज्जाद ने कहा बहन ये सवाल न करो, कहा भैया वादा करो, इमाम वक्त से पूछ रही हूं प्यास की कितनी किस्में। कहा बहन 4 किस्में। कहा भैया कौन कौन से, पहली किस्म क्या है। अजीजों पहली किस्म बताई सज्जाद ने, सारा जिंदान रो रहा था। पहली किस्म बताई सज्जाद ने, कौन सी केस। कहा बहन जब प्यास बहुत भड़क जाती है, बहुत प्यास बढ़ जाती है, तो आलम यह होता है हलक में कांटे पड़ जाते, जबान खुश्क हो जाती है। जैसे ही कहा सकीना तड़प गई, भैया ये तो मेरे अली अकबर की प्यास। लैला कलेजा थाम के बैठ गई, लैला कलेजा थाम के बैठ गई। अजीजों पुरसा देना है, अलविदा है ना। जिसे 2 महीने 8 दिन के लिए अपने घरों में मेहमान किया था, जाने का वक्त आ गया। जाएंगे मौला, ये सजी सजाई हुसैन टेकरी कल वीरान नजर आएगी। जैसे असीरों का काफिला चला गया, करबला वीरान। का भैया प्यास की दूसरी किस्म कौन सी है। रो पड़े सज्जाद, ए सकीना न पूछो। का भैया आपको बताना होगा प्यास की दूसरी किस्म कौन सी है। सैयद सज्जाद ने एक बार मां रबाब की तरफ देखा, रबाब की तरफ देखा, शहजादी जनाब ज़ैनब की तरफ देखा। ए पुपी अम्मा जरा करीब आ जाइए। करीब बैठी, पुपी अम्मा सकीना से कह दो न पूछे। ज़ैनब ने चाहा सकीना को रोके, हाथ जोड़ लिया। ए पुपी अम्मा आज सवाल होने दो। पुपी अम्मा आज मुझे सवाल करना है, आज मुझे सवाल करना है। ज़ैनब ने कहा सज्जाद बेटा बताओ, सकीना के सवाल का जवाब दे दो। कहा भैया दूसरी केस। कहा सकीना सुनो, जब प्यास और भड़क जाती है और बढ़ जाती है तो प्यासे की कैफियत क्या होती है। जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो जैसे उसका बदन खुश्क होता जाता है, उसके मुंह खोलने बंद करने की रफ्तार कम होती जाती है। ये कैफियत वो होती है कि अगर मुंह खुला है तो बंद नहीं हो पाता, बंद है तो खुल नहीं पाता। बस तड़प के सकीना खड़ी हुई, हाय ये तो मेरे अली असगर की प्यास। मेरा भैया ऐसा ही प्यासा था, मेरा भैया ऐसा ही प्यासा था। रज़ादारों जिंदान में कोहराम बरपा था। सकीना ने पूछा भैया तीसरी किस्म कौन सी है। सज्जाद तड़प के कहते सकीना क्या करोगी। कहा नहीं भैया बताओ तीसरी किस्म कौन सी है। अच्छा सुनो सकीना, प्यास की तीसरी किस्म यह है कि जब प्यास और बढ़ती है तो आंखों के सामने धुआं आ जाता है, ऐसे प्यासे को कुछ नजर नहीं आता। इस प्यासे का कलेजा ऐसा हो जाता है जैसे किसी गड्ढे में पानी भरा हो, पानी के खुश्क हो जाने के बाद गड्ढे में दरारें पड़ जाती है, जमीन चटक जाती है। ऐसे ही उस प्यासे का कलेजा जगह जगह से चटक जाता है। तड़प गई, हाय मेरा बाबा, ये तो मेरे बाबा की प्यास है, ये तो मेरे बाबा की प्यास है जो करबला में कह रहा था मुझे धुआं नजर आ रहा है। अब सुनोगे ज़ादारो आखिरी बात। सारा जिंदान तड़प रहा था। सकीना ने कहा भैया बताओ प्यास की चौथी किस्म कौन सी है। सज्जाद ने गौर से सकीना को देखा और देख के कहा सकीना क्या ये भी पूछोगी। कहा भैया इसीलिए तो सवाल किया था मैंने, ये इसीलिए सवाल किया था। ए भैया बता दो प्यास की चौथी किस्म कौन सी है जिसमें इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तक मर्तबा सज्जाद ने सकीना को देखा, माँ को देखा, पुपी को देखा, सबको देखने के बाद कहा सुनो
इससे जब प्यास और बढ़ जाती है तो गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाते हैं, हड्डियां चटकने लगती है। भैया सुनना था, सकीना ने आवाज दी, ए भैया जब मैं लेटती हूँ हड्डियों के चटकने की आवाज। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सही चौदह के। भीगी हुई आंखों से आवाज दो, ए बीबी सकीना। अज़ादारों एक जुमला कह के गुजर जाओ यहां से। जनाब सकीना, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब करे। जो लोग ज़ियारतें कर चुके हैं ना, मैं उनके सामने बात कहता हूं, दिलों पे हाथ रख के सोचो और सोच के जवाब देना। हर बारगाह में जाने के बाद जितने दिन रुकते हो, रुकने के बाद जब आना होता है ना तो विदा करने जाते हो ना, मौला हम जा रहे, शहजादी हम जा रहे। हर इमाम की बारगाह में जाके कहते हो ना, ए मौला हमारा आना आखिरी ना हो, हमें बार बार बारगाह में बुला लेना। अज़ादारों ज़ायर का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है। सुनोगे ज़ायर का मकाम? एक वाक़या सुनो, खुदा की कसम सुनो। हुसैन कितने मेहरबान अपने ज़ायर पर। हुसैन की निगाह में ज़ायर क्या है, कितना अजीम है ज़ायर। चला था एक चाहने वाला गरीब ज़ायर, गरीब ज़ायर था, सवारी का इंतजाम नहीं था, पैदल चला, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, थोड़ी सी प्याज रोटियां लेके घर से चला है। जब भूख लगती तो रोटी और प्याज खा लेता, मगर चलने का अंदाज क्या था? हुसैन की मदह में अशार कहता हुआ, हुसैन की मदह में, हुसैन की याद में डूबा। कभी नौहे, कभी अशार, इस तरह से चलता रहा, पैदल चलता रहा, पैरों में छाले पड़ते रहे, कांटे चुभते रहे, मगर सफर करबला की तरफ जारी रहा। चलता रहा, आ गया करबला में। एक आलिम दीन हरम में जियारत में मसरूफ थे, मगर उन्होंने ये देखा कि कोई शख्स है जो बड़ी अजीब जियारत कर रहा है, जो तहजीब के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ ऐसी जियारत कर रहा है। आलिम को बड़ा गुस्सा आया, मौला की तौहीन, इस तरह बारगाह में आया जाता है, इस तरह कोई जियारत करता है? तवज्जो से सुनना अज़ादारों, क्या कर रहा है ये शख्स? मौला के जरी का तवाफ कर रहा है। तवाफ करते करते बुलंद आवाज में अशार पढ़ रहा है। जो रास्ते में पढ़ रहा था वही यहां भी पढ़ रहा है, तवाफ करता जा रहा है। ये है ना कि देखो, जब रोजे पे जाओ तो आहिस्ता कलाम करो, दुआएं आहिस्ता पढ़ो, ताकि और भी लोग ज़ियारत करने आए हैं, और भी लोग अपनी दुआओं में मसरूफ हैं, लिहाजा खलल न पढ़ने पाए। दिल ही दिल में अपनी बात कहते रहो, मगर ये बुलंद आवाज में अशार पढ़ रहा था। उसके बाद इस आलिम ने देखा कि अपने थैले में से इसने रोटी निकाली, प्याज निकाली, जरी के अंदर डाल दी। और बुरा लगा, ये क्या हो रहा है? और उसके बाद फिर क्या देखता है? हुसैन के जरी से पुष्ट लगा के खड़ा हो गए। कुछ देर तक खड़ा रहा। ये आलिम देख रहा है, चूंकि हरम है, हिम्मत नहीं कि जाके रोक दे। फिर क्या देखा? ये बैठ गया जरी के सामने, अपने दोनों पैर फैला के जरी से लगा दिए, सामने बैठा हुआ। ये आलिम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये क्या हो गया? मगर कुछ कहा नहीं। ये जियारत करके बाहर निकला, आलिम पीछे पीछे बाहर आए, बाजू थामा, सुनो ये क्या तरीका था तुम्हारी जियारत का? उसने नजर उठा के देखा, कहा चाहिए आप अपनी जियारत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। कहा नहीं, ऐसी जियारत, ऐसा अंदाज मैंने कभी नहीं देखा, ये क्या है? क्या मैं ये नहीं बताऊंगा क्या है, ये मेरी बात है, मैं जानू। क्या तुम उसी इमाम की कसम जिसकी बारगाह से आ रहे हैं, बताओ उसी गरीब ज़हरा की कसम है, ये क्या था? मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कभी ऐसा करते किसी को नहीं पाया। जब कसम दे दी तो एक मर्तबा रोज़े की तरफ देखता है और देख के कहता है, मेरे महबूब की कसम दे दी, इस कसम पे तो चांद कुर्बान कर दूं। अगर सुनना चाहते तो सुनो। अब सुनो अज़ादारों, हुसैन की निगाह में हुसैन का ज़ाहिर क्या है, कितना अजीम मर्तबा, कितना चाहता है मौला।
क्या तुमने जो कुछ भी हरकतें देखी ये हरकत मेरी नहीं थी। जब मैं आया दुखूल पढ़ के दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद मैं ज़ियारत पढ़ने के बाद जब सरी का तवाफ करने लगा, अभी पहला ही चक्कर था कि मेरी नजर सरी की तरफ गई। मैंने देखा कि मेरा मौला सरी के अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है, मेरा आका बैठा मुस्कुरा रहा है। अब जो मैंने देखा, मेरा मौला बैठा हुआ मुस्कुरा के मुझे देख रहा है। मैंने सलाम किया, मेरा मौला मुस्कुरा के जवाब देता है। उसके बाद मेरे आका ने कहा, जो तुम रास्ते भर पढ़ते आए हो वही पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूं। ये जो मैं अशार पढ़ रहा था ना, ऐसे ही नहीं, मेरे मौला ने कहा था तो पढ़ रहा था। क्या उसके बाद तुमने देखा मैंने अपनी झोली से रोटी और प्याज निकाल के डाली? ऐसे नहीं, मेरे मौला ने कहा, ए मेरे जायर, जो तू रास्ते में खा रहा था ला दे, मैं भी खाऊंगा। अज़ादारो, हुसैन बड़े मेहरबान है, शर्त खुलूस की है। आओ तो अकीदत के साथ, आओ तो मारिफत के साथ। और फिर उसके बाद मेरे मौला ने कहा, जरा करीब आ जा, करीब आ जा। जब मैं मौला की जरिया अक़दस की जाली तक पहुंच गया तो मेरे मौला ने कहा, अपना रुख मोड़ ले, अपने शाने मेरी तरफ बढ़ा दे। मैं पुष्ट करके खड़ा हो गया। मेरा मौला मेरे शानों को सहला रहा था, मेरा मौला मेरे शानों को सहला रहा था। फिर एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, ए ज़ाहिर बैठ जा। हुक्म इमाम पे बैठा का अपने पैर मेरी तरफ बढ़ा। मैं लरस गया, मौला ये कैसे, ये नहीं हो सकता। का ज़ाहिर तेरा इमाम कह रहा है। मैंने पैर बढ़ाए, मेरे मौला ने मेरे पैरों के छालों को सहलाना शुरू किया। ए मेरे मौला, ज़ाहिर पर इतने मेहरबान, काश आबिदे बीमार करबला से शाम। क्या मर्तबा है ज़ाहिर का, इतनी दूर से आए हो मैं ज़ियारत करने के लिए। निगाहे हुसैन से कोई पोशीदा नहीं है, निगाहे ज़ैनब से कोई पोशीदा नहीं है, निगाहे अब्बास से पोशीदा नहीं हो। ए आने वालों, लम्हा लम्हा इनकी नजरें देख रही है, देख रही है। ये मेरे मौला के अज़ादार आए, ज़ैनब देख रही है, ये मेरे भैया के अज़ादार आए हैं, मेरे भैया के ज़ाहिर आए हैं। और अज़ादारों सुनो, ये हुसैन टेकरी है ना, अभी जब दहकते अंगारों पे कदम रखोगे, क्या ये समझते हो कौन कौन देख रहा होगा? हम ही नहीं होंगे। इन दहकते अंगारों पे जब कदम रखते हुए चलोगे, कहीं से ज़ैनब की आवाज, मरहबा मेरे भाई के मातमदार, कहीं से अब्बास, ए मेरे आका के अज़ादार, मेरे परचम के साए में चल। बड़ा मर्तबा है अज़ादार, बड़ा मकाम है। बस मैंने तमाम कर दी सहमत, एक वाकया और मजलिस तमाम कर दी मैंने अज़ादारों। चूंकि अलविदा है और ये तारीख है वो है कि करबला से चला हुआ काफिला मदीना पहुंच रहा है। बस आखिरी जुमले, सिर्फ चंद मिनट आप मेरे साथ रहिए। उसके बाद दहकते अंगारों के पास जब जाना और जब दहकते अंगारों को देखना तो करबला की तपती हुई जमीन को जरा देर के लिए अपने जहनों में बसा लेना, जिस पर हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को लिटाया था। एक मां देख रही थी जिसका बच्चा, 6 महीने का बच्चा उस जलती जमीन पर लिटाया गया था। बस अज़ादारों, जब ये काफिला, लुटा हुआ काफिला मदीना आ गया, सारी रवायतें आप मजलिसों में सुन चुके, सिर्फ एक रवायत बयान करूंगा। बैरून शहर काफिला रोका गया, बशीर इब्ने जसलम से कहा गया हमारे आने की खबर अहले मदीना को कर दे कि जो काफिला हुसैन ले गए थे ज़ैनब उसे लेकर आई है। ए बशीर, इतना कहना कि हुसैन मारे गए, ये न कहना कि ज़ैनब असीर हुई।
जब ये मुनादी निदा करता हुआ मोहल्ले बनी हाशिम में आया, आवाज दी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। जब खबरें बनी हाशिम के मोहल्ले के घर घर में पहुंच गई, सारी रवायतें छोड़ के बस आखिरी जुमला आज़ादारों, पूरी मजलिस, बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम है। तमाम बनी हाशिम की औरतें घरों से निकली, वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा की सदा बुलंद है। सब कहाँ गए? उस घर पे आए जो हुसैन का मकान, जिस मकान में एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी, सोगरा इंतजार कर रही थी। मोहल्ले बनी हाशिम की औरतें अब चलने लगी। क्या पता चला? बैरून शहर काफिला रुका हुआ है और ज़ैनब नाना के रोज़े पे गई, नाना की कब्र पे गई। आए बनी हाशिम के लोग चले। कैसे चले? अब सोगरा घर से निकली, मेरी फूफी आई है, कुनबा लेके आई है, इस अंदाज में निकली कि बनी हाशिम की औरतें हैं, कनीसों का छुरमुट है, ये मदीना है ना। बड़े शान से सुगरा चली, चलती जा रही, चलती जा रही। इधर ज़ैनब कब्र नबी पर थी, फरियाद करती रही, अहवाले करबला बयान करती रही, ए नाना मदीना उजड़ गया। और उसके बाद जब सब कुछ कह चुके थे, इतना कहा, सज्जाद बेटा जरा सबको बाहर कर दो, मैं नाना से कुछ तन्हाई में कहना चाहती हूं। सज्जाद बेटा सबसे कह दो कि बाहर चले, खैमे में बैठे, मैं नाना से कुछ तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती हूं। सारी बीवियां बाहर। सज्जाद दर पे का, सज्जाद बेटा तुम भी बाहर चले जाओ, मुझे नाना से तन्हाई में कहना है। सज्जाद बाहर निकले, बाहर निकल के रास्ते पे जाके बैठ गए। सज्जाद रास्ते पे जाके बैठ गए। इधर ज़ैनब नाना की कब्र के करीब आई, दो सालों बैठी, नाना की कब्र को देखा। ए नाना, एक तोहफा जो उम्मत ने दिया था, भाई का खून आलूद पैराहन आपको दिखा चुकी। नाना एक तोहफा और लाई हूं, एक तोहफा और लाई हूं नाना। अगर ये पहलू में नामहरम ना होते तो पुष्ट से चादर हटाती। ए नाना, करबला से शाम। बस यहाँ ठहर के एक जुमला सुनते चलो आज़ादारों। इब्ने जज़र मलऊन, खुदा लानत करे उस पर जो करबला नहीं पहुंच सका था, रास्ते में मिला, कहता मुझे इनाम चाहिए। अभी करबला से काफिला निकला था, शिवर ने कहा इनाम चाहिए, कहा इनाम चाहिए, कहा जितना चाहता उससे ज्यादा इनाम मिलेगा, तुझे एक काम करना है। कहा क्या काम? कहा बस ये काम करना है, देख ये ताजियाना ले ले, ये ताजियाना ले ले। का क्या करना है? का बस इतना ख्याल रखना, ये देख नाके पे अली की बेटियां सवार है, तुझे इतना करना है यहां से शाम तक अली की बेटी को कभी सोने न देना। कितने ताजियाने बरसे। ए नाना, पुष्ट से चादर हटा देती। इधर ज़ैनब फरियाद कर रही, उधर बनी हाशिम की औरतें आ रही है। करीब पहुंची, कनीजें रुकी, कनीजें रुकी, औरतें रुकी, औरतें रुकी, सुगरा रुकी। क्या हुआ? कनीजन शाहजादी, रास्ते पर एक बीमार बैठा है। बस मैंने तमाम कर दी मजलिस अज़ादारों, आखिरी जुमला, मजलिस तमाम है। रास्ते पर एक बीमार बैठा हुआ है। ए बीबी जरा आप ठहर जाए, हम उसे जरा रास्ते से हटा दें ताकि आप नाना की कब्र तक चली जाए। क्या पुपी अम्मा मौजूद है? सुगरा ने कहा बीमार है ना? कहा का देखो समझा के हटाना, बीमारी क्या होती है मुझे पता है, बीमार कैसा नहीं फलागर होता है, बीमार कितना कमजोर होता है कि बैठ जाए तो उठना दुश्वार होता है। कनीज़े गई, कुछ देर बाद आई, ए बीबी बीमार हटता नहीं है, बीमार वहीं बैठा हुआ है। सुगरा ने कहा अच्छा उठने के काबिल न होगा, चलो हम चले जाएंगे। बड़ी सुगरा आगे, मगर जैसे बीमार के सामने पहुंची, बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए। सुगरा ने चाहा आगे बढ़े मगर कदम आगे न बढ़ सके। बस एक मर्तबा सुगरा की नजर उठी, आवाज दी, भाई बीमार हो? बीमारी का दर्द मुझे मालूम है, बीमारी क्या होती है, मगर सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अंदर मेरी फूफी है, मुझे अपनी फूफी से मिलना है।
जरा सा किनारे हट जाओ, मैं अपनी पुप्पी से मिल लूं। अज़ादारों तैयार हो गए, जुमला कह के मजलिस तमाम कर दूंगा। सगरा ने कहा भाई जरा हट जाओ, जरा किनारे हट जाओ, मैं अपनी पुप्पी से मिल लूं। अंदर मेरी पुप्पी है, मेरी पुप्पी पलट के आई है। बीमार ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी झुकी हुई गर्दन उठाई, उठा के एक जुमला कहा, ए सोगरा क्या भैया से न मिलेगी? आवाज सुनी, तड़प गई सोगरा, दौड़ के लिपट गई, हाय भैया। भैया इमाम ने सुगरा को सीने से लगाया, ए भैया मेरा अली अकबर का सुगरा मारा गया, कहां से मारा गया? और मोहम्मद, ए भैया सब मारे गए, का सुगरा सब मारे गए। बड़ी तेजी से सुगरा उठी, आगे बढ़ी, बीबियां सामने नजर आई, एक एक बीबी को गौर से देखती जा रही, देखती जा रही, देखती जा रही है। किसी ने पूछा, सोगरा क्या तलाश कर रही हो, क्या तलाश कर रही हो? नंदी से सोगरा ने आवाज दी, सब मारे गए ना? मेरा नन्ना भैया अली असगर भी गया था, वो तो मैदान में जाने के काबिल न था, मेरा भैया तो आया होगा। रबाब आगे बढ़ी, ए सोगरा अली असगर तीरे सितम का निशाना, ए सोगरा उर्मुला का तीर, मेरा प्यासा बच्चा। सोगरा जमीन पे बैठी, हाय मेरा भैया, हाय। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिस सालिमीन, सयअलमुल लज़ीना असलमु यमन कल्बी यनकलबून बेक ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनीहा या रब्बल हुसैन बेहक़िल हुसैन इश्क़ सदरिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बेहक़्क़ि मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बारे इलाहा हमारी इबादत को कबूल फरमा, तमाम दूर दराज से आए हुए हज़रात की ज़ियारतों को कबूल फरमा। बारे इलाहा यहाँ मौजूद तमाम मेरी माँ बहनें, छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग सब मौजूद हैं। परवरदिगार और खुसूसन मौला हुसैन, मौला अब्बास, शाहजादी, सबकी बारगाह में बस इतनी इल्तिजा है कि अगर कहीं ज़रा सा भी शान में गुस्ताखी हो गई हो, कोई ख़ता हो गई हो, हमसे कहीं भी कोई तौहीन का सबब बन गया हो हमारा कोई काम, हमारी कोई हरकत, तो शाहजादी उसे माफ़ कर दीजिएगा। ए मेरे परवरदिगार, तमाम अज़ादारान हुसैन जहाँ जहाँ आबाद हैं, इन सब के घरों को आबाद रख। परवरदिगार, जैसे हमने अय्याम अज़ा के ये दिन अपने मौला के मातम में गुजारे, वैसे ही हमें हमेशा ही इसी तरीके से मौला का अज़ादार बनाए रख। परवरदिगारा, अज़ादारी के दुश्मनों को दुनिया से निस्व नाबूद फरमा। माबूद, हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अमान अंसार में शुमार फरमा। बारे इलाहा, यहाँ खिदमत करने वाले, इंतज़ाम करने वाले तमाम मोमिन मोमिनात जो शरीक रहे, मौला की खिदमत करने वाले, आने वाले मौला के ज़ायरों की खिदमत करने वाले, मेहमान बनाकर हुसैन के ज़ायरों की खिदमत करने वालों की तमाम खिदमतों को कबूल फरमा। बारे इलाहा, इन तमाम इलाकों से, तमाम बस्तियों से तमाम आफात और बला को दूर फरमा, अपनी रहमत नाजिल फरमा। माबूद, हुसैन के गम को मनाने में हमें दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक इनायत फरमा। हमारे बच्चों को हुसैन का ज़ादार रख। परवरदिगार आलम, हमारे घरों को, हमारे घर के अतराफ वालों को, तमाम आए हुए हजरात को हर तरह के बलावाफात से महफूज फरमा। सबको राह हक पर चलने की तौफीक इनायत फरमा, सबको हिदायत नसीब हो जाए। बारे इलाहा, ऐसे रास्ते पे लगा दे, ऐसा अमल करने की हमें तौफीक अता कर दे।